Hello and welcome to this session. Myself, Professor Roshan Yerne from NIT Polytechnic Nagpur Electrical Department. So, student, in last video we learned about the unit number 1, that is the last topic, that is starting and controlling of three-phase induction motor. So now today we start the second unit, that is unit number 2, that is सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. हमने इसके पहले थ्री फेज के बारे में पढ़े हैं. अभी हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में. सो फर्स्ट we see in this video that is working principle of single phase induction motor. So let us start a video with a course outcome and learning outcome. The course outcome is use the relevant single phase induction motor for different applications, and the learning outcomes are after completing this video you should be able to understand about working principle of single phase induction motor and explaining why single phase induction motor is a not self starting. After that, a program outcome mapping. So after completing this video you should be map this topic with PO1, that is we should be satisfied the basic knowledge, PO2 that will be satisfied the discipline knowledge, because this topic is related to our electrical branch and hence PO2 will be satisfied. Now PO3 is also satisfied because in this video we learn about the various diagram and you have to practice that diagram, so PO3 also get satisfied. Now PO9, the PO9 is nothing but a communication, we communicate with each other, so here the PO9 also get satisfied. And the PO10, that is this topic will be used for lifelong learning up to the in your industry also this topic will be very much useful to yours, and hence the PO10 also satisfied. Then PSO2 also satisfied because this program specific outcome second number is electrical machine and this topic is related to the electrical machine. So now we start with the induction motor, that is the single phase induction motor. So student, हमने last time थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े हैं. अभी इस वीडियो में हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि द थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल वर्क ऑन थ्री फेजेस, दैट इज आर वाई एंड बी, बट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वेयर विल बी यूज्ड, जहां पे भी हमें सिंगल फेज यूज होता है या ओनली सिंगल फेज हमारे पास अवेलेबल होता है, वहीं पे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सेम एज अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. बोथ आर वर्किंग ऑन अ सेम प्रिंसिपल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल. So this is the diagram of construction of single phase induction motor. So see this, the diagram will be same as a three phase induction motor. जैसा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक आउटर केसिंग होती है वैसा ही यहाँ पे भी आउटर केसिंग दिया हुआ है. देन एक रोटर दिया हुआ है, स्क्वायरल केज रोटर दिया हुआ है. देन यहाँ पे स्टेटर में आपको वाइंडिंग दी हुई है. ये स्टेटर की वाइंडिंग आपको अब आगे जानोगे कि ये स्टेटर की वाइंडिंग हम इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में एंड रनिंग वाइंडिंग में. वो किस लिए करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं. सो देन इसमें फिर एक एंड ब्रैकेट बेरिंग हाउस यूज किया है, यानी बेरिंग को फिट करने के लिए. देन एक कूलिंग फैन यूज किया हुआ है. देन ये बेरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि मोशन जो है शाफ्ट वो प्रॉपरली हो सके. देन मोटर का शाफ्ट जो है ये रोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. देन जो आउटर जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का फ्रेम या फिर योक बोला जाता है जो कि कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है. तो ये एक क्लोज टाइप एक
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपको दिख रहा है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए ये क्लोज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है। बहुत बार आप लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखे हैं, घर में भी आप लोगों ने देखे होंगे, फैन में भी इस्तेमाल होता है, वहां पे भी कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट topic that will be asked time a maximum times, that is why single phase induction motor is a not self starting। यही एक मेन डिफरेंस होता है सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये सेल्फ स्टार्ट होता है लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब ये सेल्फ स्टार्ट ना होने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन बहुत ही सिंपल है कि जो हमने देखे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो फ्लक्स कैसा होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी आरएमएफ। लेकिन आप लोगों ने पढ़े हैं सिंगल फेज का मतलब होता है सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी कैसी होती है? वेवफॉर्म में एक अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड अल्टरनेटिंग नेगेटिव। इसका मतलब जो भी अपने को वेवफॉर्म मिलती है सिंगल फेज में वो कैसी होती है? अल्टरनेटिंग। और इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो फ्लक्स कैसा होता है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। सो let us see why the single phase induction motor is a not self starting। So for that reason, so it is when single phase supply is given to the main it produce the alternating flux। यानी जब मेन वाइंडिंग को हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग to double field revolving theory, the alternating flux represented by two opposing rotating flux of half magnitude। So according double field revolving theory क्या बोलता है कि जब कोई alternating flux प्रोड्यूस होता है तो वो alternating flux दो हाफ पार्ट में प्रोड्यूस होता है और ये दोनों हाफ पार्ट यानी एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। अब ये दोनों जो फ्लक्स है वो क्या होंगे? रोटेट होंगे। अब फ्लक्स रोटेट होंगे कहां पे? एयर गैप में। अब एयर गैप में फ्लक्स रोटेट होने के वजह से अब क्या होगा? वो जो फ्लक्स है वो रोटर में क्या करेंगे? करंट इंड्यूस करेंगे यानी ईएमएफ। जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में देखे हैं कि whenever the flux has to be generated and that flux has cut by the rotor conductor, that rotor conductor can induces the EMF। यानी रोटर कंडक्टर क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अब ये ईएमएफ इंड्यूस करने के वजह से वहां पे क्या इंड्यूस होगा? रोटर करंट। सो दिस अपोजिट रोटेटिंग फ्लक्स इंड्यूसेस द करंट इन अ रोटर एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन फ्लक्स इज कॉल्ड एज अ रोटर फ्लक्स। अब ये रोटर में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। रोटर में करंट फ्लो होने के वजह से अब रोटर का एक फ्लक्स नया जनरेट होगा। अब यहाँ पे दो फ्लक्स जनरेट हो गए, एक तो अपना मेन फ्लक्स और दूसरा अपना रोटर फ्लक्स। अब ये मेन फ्लक्स और रोटर फ्लक्स ये दोनों एक में के साथ क्या करेंगे? इंटरैक्शन करेंगे और इंटरैक्शन के वजह से यहाँ पे दो टॉर्क जनरेट होंगे और ये दोनों के दोनों टॉर्क कैसे रहेंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी एक टॉर्क पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड के तरफ जाएगा तो दूसरा टॉर्क कैसा जाएगा? रिवर्स के तरफ। अब एक फॉरवर्ड जा रहा है एक रिवर्स जा रहा है। अब एक आगे की तरफ खींच रहा है एक पीछे की तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों दोनों साइड से वो रोटर को क्या करेगा? खींचेगा, फोर्स लगाएगा रोटेट होने के लिए। लेकिन रोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस साइड में वो रोटेट हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। और इसी के वजह से वहां का जो नेट टॉर्क है वो दोनों टॉर्क एक में को कैंसिल हो जाते हैं और जो नेट टॉर्क अपने को मिलता है वो कैसा मिलता है? जीरो मिलता है। और उसी के वजह से इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द रोटर रिमेन्स स्टैंड स्टिल। जो रोटर है वो क्या हो जाता है? अपने ही जगह पे ऐसे के वैसे एज इट इज स्टैंड स्टिल रहता है, क्योंकि यहाँ दो फोर्स जनरेट होते हैं, एक फोर्स पॉजिटिव पल्स का तो दूसरा फोर्स निगेटिव पल्स का। और यही कारण है कि कभी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं रहती। और फिर इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जो कि हम थ्री फेज से इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं।
वो मॉडिफिकेशन क्या करते हैं? तो मॉडिफिकेशन में वी हैव टू बी यूज द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, यानी जो स्टेटर वाइंडिंग है, इस स्टेटर वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। दो पार्ट में क्या करते हैं? स्प्लिट, जिसके वजह से दो वाइंडिंग हमने को मिलती है, एक मेन वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का ये, और सॉरी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है टू स्टार्ट द मोटर, मोटर को एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद उस वाइंडिंग का कोई काम नहीं होता, ओनली फिर आगे मोटर जो रन होती है वो ओनली रनिंग वाइंडिंग के ऊपर रन होती है। सो हाउ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गेट सेल्फ स्टार्टिंग? बाय ओनली द स्प्लिटिंग ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। अब इसको स्प्लिट क्यों किया जाता है और कैसे इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करेंगे? सो टू मेक द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें किसी भी मोटर को अगर सेल्फ स्टार्ट करना है तो उससे हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर करना है तो हमें दो कंडीशन हमें मिलनी चाहिए, और ये दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए? पहली, कि जो दो फ्लक्सेस वहां पे जनरेट होंगे ये दोनों एक में से 90 डिग्री से शिफ्टेड रहने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि दो टू मैग्नेटिक फ्लक्सेस शुड बी इन अ टाइम क्वाड्रेचर, यानी ये दोनों फ्लक्सेस टाइम क्वाड्रेचर भी रहने चाहिए और साथ में ये 90 डिग्री फेज शिफ्टेड रहने चाहिए। और जब ये 90 डिग्री फेज शिफ्टेड रहेंगे स्पेस के साथ और दोनों टाइम क्वाड्रेचर रहेंगे, तभी जाके अपना यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? अल्टरनेटिंग के जगह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये करने के लिए फिर हमें क्या इंप्लीमेंट करना पड़ता है? सो टू सेटिस्फाइड अबाउट टू कंडीशन we implemented the double revolving field theory in a सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मोटर को रिवॉल्व होने के लिए फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ही क्या करता है? वहां पे वाइंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करके दो फ्लक्सेस जनरेट करते हैं इक्वल पार्ट के, और उन दोनों फ्लक्सेस को 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड करते और साथ में उनको टाइम क्वाड्रेचर करते, जिसके वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये रोटेटिंग होता है, और रोटेटिंग होने के वजह से फिर जो अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट होना शुरू होती है। और इसी के वजह से इंडक्शन मोटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी बोला जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी बोला जाता है जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, देन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, एंड शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो ऐसे 4 से 5 टाइप्स के इंडक्शन मोटर जो है वो सिंगल फेज के हो जाते हैं, बिकॉज ओनली फॉर द सेल्फ स्टार्ट, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करते हैं उस मॉडिफिकेशन के ऊपर ही इसके वेरियस टाइप्स है। सो इन अगले वीडियो में हमें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि ये क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या होती है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, और उसके हेल्प से हम इंडक्शन मोटर को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट the construction of single phase induction motor, then we learn about the why single phase induction motor is a not self starting, और उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये भी हमने इस वीडियो में देखे। नाउ देयर आर द 2 असाइनमेंट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड in a question paper, that is MSBT question paper, why single phase induction motor is not self starting and how to make the single phase induction motor self start, किस तरीके से इसको self start किए जाते हैं। In next video we learn about the double field revolving theory। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में अपने को पढ़ना है, साथ ही में अपने को वेरियस टाइप्स के इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन पढ़ना है। ये इंडक्शन मोटर जो है सिंगल फेज अपने होम अप्लायंस में यूज होता है, डोमेस्टिक अप्लायंस में होता है, इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे सिंगल फेज ही आता है। तो सिंगल फेज जहाँ पे होता है वहां पे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू very much. Next video we learn
double field revolving theory. So thank you very much.